Ignited Minds Tutorials has recently shared a comprehensive video tutorial covering the mathematics question paper for CBSE Class 10, 2023. This tutorial is designed to enhance students' knowledge and understanding of mathematics concepts, thereby helping them excel in their exams. The video tutorial begins by introducing the importance of mastering mathematics and its real-life applications. It then dives into various topics included in the 2023 question paper, such as algebra, geometry, trigonometry, and statistics. Each topic is explained in a clear and concise manner, ensuring that students grasp the fundamental concepts effectively. Throughout the tutorial, the expert instructor provides step-by-step solutions to different types of problems, guiding students to solve them independently. The video also emphasizes important techniques and shortcuts to enhance problem-solving skills, which can be extremely beneficial during exams. Additionally, the tutorial emphasizes the importance of practice, offering supplementary practice questions along with their solutions. This enables students to reinforce their learning by attempting a variety of problems and further consolidating their knowledge. By providing a comprehensive walkthrough of the 2023 mathematics question paper, Ignited Minds Tutorials aims to equip students with the necessary tools and knowledge to achieve academic success. This resource serves as a valuable aid for CBSE Class 10 students, empowering them to approach their exams with confidence and excel in mathematics. Okay, so people, yesterday we were solving 2023 का पेपर, और इसमें देखो ये वाला सवाल था, इन द गिवन फिगर अ सर्कल इज इंस्क्राइब्ड इन अ क्वाड्रिलैटरल. ये आपका भाई साहब ए बी सी डी एक क्वाड्रिलैटरल है, इन विच एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री. ये वाला एंगल बी है भाई साहब, जिसका वैल्यू आपको दिया हुआ है 90 डिग्री. ए डी इज इक्वल टू 17 सेंटीमीटर. तो भाई साहब ये हो गया आपका ए डी. AD is equal to 17 सेंटीमीटर. ठीक है. AB is equal to 20 सेंटीमीटर. तो आपका ये वाला हो गया भाई साहब AB, that is 20 सेंटीमीटर. AB is equal to 20 सेंटीमीटर. ठीक है. एंड DS की वैल्यू यहाँ पे दी हुई है आपको 3 सेंटीमीटर. सो ये वाला हो गया आपका DS, that is equal to 3 सेंटीमीटर. देन फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल. तो आपको यहाँ पे रेडियस ऑफ द सर्कल को फाइंड आउट करना है. ठीक है. ओके, कैसे करेंगे भाई साहब? यहाँ पे देखो ये वाला आपका कितना हो गया, ये 3 है. DS और DR बराबर होगा. टेंजेंट्स फ्रॉम द सेम एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल इन लेंथ. तो DR की वैल्यू कितनी हो जाएगी बोलो? 3 सेंटीमीटर. ठीक है. तो इसका मतलब AR की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई? 17 माइनस 3 तो कितना हो गया? 14. ठीक है. ओके, 17 माइनस 3 14. तो AQ की वैल्यू कितनी हो जाएगी? AQ की वैल्यू कितनी हो जाएगी? अरे 14 ना भाई साहब. टेंजेंट्स फ्रॉम द सेम एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल. AR और AQ बराबर टेंजेंट फ्रॉम द सेम एक्सटर्नल पॉइंट. तो आपका AQ का वैल्यू कितना हो जाएगा? 14. ओके, अभी हम आते हैं भाई साहब इस पे AB पे. AQ की वैल्यू 14 हो गई, तो QB की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 20 माइनस 14 दैट इज 6. ठीक है. ये वाला ध्यान से देखो, ये किस तरीके का एक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है. ये 90 है. ये वाला कितना होगा? 90. ये वाला कितना होगा? 90. तो ऑब्वियस सी बात है भाई साहब, ये क्या हो जाएगा? एक रेक्टेंगल. लेकिन रेक्टेंगल नहीं होगा. क्यों? क्योंकि BQ और BP बराबर होंगे. तो ये एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल है जिसमें सारे एंगल्स 90 डिग्री के हैं और एडजेसेंट साइड्स क्या हैं? इक्वल हैं. ठीक है. तो क्या हो जाएगा ये? दिस विल बी अ स्क्वायर. तो स्क्वायर हो गया, तो उसका मतलब सारे साइड्स बराबर, मतलब QB और OP आपका बराबर हो जाएगा. QB की वैल्यू कितनी आई है भाई साहब? 6. तो आपका रेडियस कितना हो गया भाई साहब? 6. आर वी क्लियर? ये फंडे से आपको भाई साहब करना है, फटाफट से आपको सजाना है यहाँ पे. सो यहाँ पे हम लिखेंगे भाई साहब DR is equal to DS. Why? Tangents from the same external point. Tangents from the same
external point to a circle are equal in length. Tangents from the same external point to a circle are equal in length. तो dr की वैल्यू कितनी हो गई बोलो? dr की वैल्यू हो गई 3 सेंटीमीटर. क्लियर है पीपल? हम समझ में आतम? तो यहां पे dr की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब? 3 सेंटीमीटर. क्लियर क्लियर क्लियर. ओके, तो आपका AR का वैल्यू कितना हो जाएगा? AR विल बी इक्वल टू AD माइनस DR. ठीक है, AD की वैल्यू कितनी है? 17 सेंटीमीटर माइनस 3 सेंटीमीटर, दैट विल बी 14 सेंटीमीटर. AR की वैल्यू हो गई भाई साहब 14 सेंटीमीटर. ठीक है, AR की वैल्यू हो गई आपकी 14 सेंटीमीटर. ओके, अभी AR या AQ को क्या बोल सकते हैं हम? AQ विल बी इक्वल टू AR. ठीक है, फिर से वो रीजन देने की जरूरत नहीं है. अगर आपने एक बार दे दिया है फिर से दे सकते हैं, अगर आपके पास टाइम है. नहीं भी देंगे तो मार्क्स नहीं कटेंगे. ठीक है, ओके, अगर आपके पास टाइम है तो दे दीजिए. ठीक है, तो AQ की वैल्यू भाई साहब क्या हो जाएगी? AR के बराबर. तो AQ की वैल्यू हो गई आपकी कितनी? AQ विल बी इक्वल टू 14 सेंटीमीटर. ठीक है, तो अभी आपका भाई साहब AB माइनस AQ इज इक्वल टू QB. ठीक है, तो देयरफॉर QB की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब? AB की वैल्यू है 20 सेंटीमीटर माइनस AQ की वैल्यू कितनी आई? 14 सेंटीमीटर, दैट विल बी 6 सेंटीमीटर. ठीक है, तो अभी यहां पे हम लिख सकते हैं भाई साहब QB की वैल्यू कितनी हो गई? 6 सेंटीमीटर. ठीक है, ओके. नाउ इन क्वाड्रिलैटरल कौन सा भाई साहब? QBPO. QBPO एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री. ये क्या है भाई साहब आपका? गिवन. ठीक है, एंगल OQB, एंगल QB लिख सकते हैं, लेकिन एंगल OQB इज इक्वल टू एंगल OPB. बोथ आर इक्वल टू 90 डिग्री. रीजन क्या हो जाएगा बोलो? टेंजेंट एंड रेडियस एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. ठीक है, क्लियर है? ओके, ये हो गया भाई साहब. तो अब हम क्या बोल सकते हैं? देयरफॉर एंड और यहां पे क्या बोल सकते हैं? ऑल्सो हम यहां पे बोल सकते हैं BQ इज इक्वल टू BP. अगेन वही रीजन है, देखो, टेंजेंट्स फ्रॉम द सेम एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल इन लेंथ. तो हम यहां पे क्या बोल सकते हैं? देयरफॉर क्वाड्रिलैटरल QBPO इज अ स्क्वायर. किस परिभाषा से स्क्वायर भाई साहब? ठीक है, इफ ऑल एंगल्स ऑफ अ quadrilateral are equal to 90 degree and adjacent sides are equal, then it's a square. ठीक है, क्लियर है? इसके हिसाब से क्या हो जाएगा भाई साहब आपका? इसके हिसाब से हो जाएगा भाई QB. तो अपन अभी लिख सकते हैं therefore QB will be equal to OP. ठीक है, वाई ऑपोजिट और ऑल साइड्स ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल. ऑल साइड्स ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल. ठीक है, क्लियर है? तो आपका भाई साहब यहाँ पे OP की वैल्यू कितनी हो जाएगी? जितनी QB की वैल्यू है, दैट इज 6 सेंटीमीटर. देयरफॉर रेडियस ऑफ द सर्कल इज 6 सेंटीमीटर. देयरफॉर रेडियस ऑफ द सर्कल is 6 सेंटीमीटर. क्लियर है पीपल? हम आर वी क्लियर ऑन दिस वन? ठीक है, ओके. चलो भाई साहब, यहां पे सवाल दिया हुआ है, प्रूव दैट tan थीटा प्लस sec थीटा माइनस 1 ऑन tan थीटा माइनस sec थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 1 प्लस sin थीटा अपॉन cos थीटा. ठीक है, कैसे करेंगे भाई साहब इसको? तिवारी टाइम पास मत कर. तो यहां पे कितना हो जाएगा? tan थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी बोलो? sin थीटा बाई cos थीटा प्लस 1 अपॉन
कॉस थीटा माइनस 1, इधर कितना हो जाएगा बोलो, साइन थीटा बाई कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन कॉस थीटा प्लस 1। ठीक है, क्लियर है? ओके, तो इधर कितना आ गया बोलो, दिस विल बी हाउ मच, कॉस थीटा, ऊपर कितना हो गया, साइन थीटा प्लस 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, साइन थीटा प्लस 1 माइनस कॉस थीटा, इधर कितना हो जाएगा बोलो, साइन थीटा माइनस 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन कितना हो गया भाई साहब, कॉस थीटा। ये कॉस थीटा और ये कॉस थीटा भाई साहब हो गए कैंसिल। ठीक है, ओके, साइन थीटा प्लस 1 माइनस कॉस थीटा यहाँ पे, और साइन थीटा यहाँ पे देखो किसका साइन चेंज नहीं हो रहा है, तो अपन इसको क्या लिख सकते हैं बोलो, साइन थीटा प्लस 1 माइनस कॉस थीटा, और इसको क्या लिख देंगे, देखो यहाँ पे हो जाएगा, इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, साइन थीटा प्लस 1 माइनस कॉस थीटा, ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, और नीचे क्या हो जाएगा भाई साहब, साइन थीटा माइनस 1 माइनस कॉस थीटा, ऐसा लिख सकते हैं। कैन बी राइट दिस वे, है ना भाई? ठीक है, तो इसको अगर हमने मल्टीप्लाई किया इसके कॉन्जुगेट पेयर से, विच इज हाउ मच, साइन थीटा प्लस 1 माइनस कॉस थीटा के साथ, साइन थीटा प्लस 1 माइनस कॉस थीटा के साथ, और यहां पे हो गया आपका साइन थीटा, ठीक है, प्लस 1 माइनस कॉस थीटा, दोनों को इससे मल्टीप्लाई कर दिया हमने। ठीक है, तो ऊपर नीचे क्या ही हो जाएगा बोलो, दिस विल बी हाउ मच, रितु टाइम पास हो रहा है तब से, साइन थीटा ये हो जाएगा भाई साहब आपका साइन थीटा प्लस 1 माइनस कॉस थीटा, इसका भाई साहब हो गया स्क्वायर। ठीक है, और नीचे यहां पे क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर, ये हो गया a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, कितना ही आ जाएगा बोलो इसको, साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर प्लस 2 साइन थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, अपॉन यहां पे क्या हो जाएगा बोलो, दिस विल बी साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 कॉस थीटा। इसमें गड़बड़ हो रहा है भाई साहब, टा 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 टा, इससे नहीं हो सकता सवाल, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, देखते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 कॉस थीटा माइनस 2 साइन थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 माइनस 2 कॉस थीटा प्लस 2 साइन थीटा माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा, साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा, तो ये हो गया भाई साहब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस 1 हो गया 2 माइनस 2 कॉस थीटा प्लस 2 साइन थीटा माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन यहाँ पे कितना हो जाएगा भाई साहब, साइन स्क्वायर थीटा को अपन लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इसका साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे लिखा है इसको -1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा। ठीक है, तो इसका हो गया कितना, देखो 2 माइनस 2 कॉस थीटा, तो इसमें से अपन 2 को अगर कॉमन निकालते हैं तो यहाँ पे कितना आएगा, 1 माइनस कॉस थीटा,
और यहाँ पे अगर अपन ने कॉमन निकाला 2 sin थीटा, सो 2 sin थीटा अगर कॉमन निकाला तो इधर हो गया 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। इधर कितना हो जाएगा बोलो, 1 से 1 कैंसिल हो गया, ठीक है, -2, ये हो गया आपका 2 cos थीटा, ये 2 cos थीटा माइनस 2 cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। ओके ओके ओके, सो दिस विल बी हाउ मच, 2 प्लस 2 साइन थीटा, 2 प्लस 2 साइन थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन, यहाँ पे 2 cos थीटा को हमने बाहर निकाला, इधर कितना आएगा बोलो, 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। सो ये और ये आपका हो गया कैंसिल, ठीक है। इन दोनों में से 2 को कॉमन निकाला जा सकता है, तो 2 इंटू 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 2 कॉस थीटा, यहाँ पे ये कैंसिल हो गया, सो दिस विल बी 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा एंड दिस इज इक्वल टू RHS, और ये हो गया भाई साहब आपका हेंस प्रूफ, ठीक है। क्लियर 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 पीपलम, ओके। A room is in the form of a cylinder surmounted by a hemispherical dome. एक सिलेंडर है और ऊपर एक हेमिस्फेरिकल डोम है. The base radius of the hemisphere is 1/2 the height of the cylindrical part. Find the total height of the room if it contains this much cubic of air. ठीक है, एक रूम है which is in the form of a cylinder, ठीक है, और उसके ऊपर भाई साहब हेमिस्फेरिकल डोम है. So let's say this is basically a और इसके ऊपर भाई साहब आपका आता है हेमिस्फेरिकल डोम. ठीक है, सो दिस इज बेसिकली द रूम. एक हेमिस्फेरिकल डोम है. रूम इज इन द फॉर्म ऑफ अ सिलेंडर सरमाउंटेड बाय अ हेमिस्फेरिकल डोम. द बेस रेडियस ऑफ द हेमिस्फीयर. तो लेट्स से आप यहाँ पे रेडियस की बात कर रहे हैं. ये हो गया भाई साहब आपका बेस रेडियस ऑफ द हेमिस्फीयर. तो लेट्स से ये r हो गया. ठीक है, द बेस रेडियस ऑफ द हेमिस्फीयर इज 1/2 ऑफ द हाइट ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट. तो r, तो ये समझ लो भाई साहब आपका h हो गया. दिस इज h. ठीक है, बेस रेडियस इज हाफ ऑफ h. ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, r की वैल्यू क्या हो गई, हाफ ऑफ h. ठीक है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है पीपलम. ठीक है, द बेस रेडियस, फाइंड द टोटल हाइट ऑफ द रूम. तो आपको यहाँ पे h की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. इफ इट कंटेन्स दिस मच क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ एयर. तो टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर कितना हो जाएगा बोलो, जो इसका टोटल वॉल्यूम होगा, टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर यहाँ पे आपको दिया हुआ है कितना है, 1408 बाई 21 सेंटीमीटर क्यूबिक. अभी यहाँ पे टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर. ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर इज इक्वल टू 1408 बाई 21. ठीक है, ओके. वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर भाई साहब कितना हो जाएगा बोलो, पाई आर स्क्वायर एच. सो दैट विल बी पाई आर स्क्वायर एच. ठीक है, और वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर कितना हो जाएगा, 2/3 पाई आर क्यूब. समझ में आ रहा है, ये 4/3 पाई आर क्यूब पूरे स्फीयर का होता है. आधे स्फीयर का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 2/3 पाई आर क्यूब, उसका आधा. ठीक है, तो पाई ये हो गया आपका 1408 बाई 21. यहां पे पाई को अगर हम बाहर निकालते हैं, ठीक है, और आर स्क्वायर को बाहर निकालते हैं, अंदर कितना बचेगा बोलो, h प्लस 2/3 r. h प्लस 2/3 r इज इक्वल टू 1408 बाई 21. ठीक है, जहां पे भी r है उसको h कर दो चाहे तो. ठीक है, यहां पे कितना हो जाएगा, पाई r की जगह पे आप क्या लिख सकते हो, h/2 का स्क्वायर, विच विल बी हाउ मच, h स्क्वायर बाई 4. समझ में आ रहा है, ये r इज इक्वल टू हाफ ऑफ h है, क्योंकि आपको h निकालना है यहाँ पे. वैसा कुछ नहीं है, आप r भी निकाल सकते हैं, लेकिन क्यों ही डबल मेहनत करें हम यहाँ पे. ठीक है, तो यहाँ पे हो गया h स्क्वायर बाई 4. इधर कितना हो जाएगा बोलो, h प्लस r की जगह पे अगेन
ये 2/3 है इंटू h/2, तो ये कैंसिल हो गया, तो ये हो गया h/3 इज इक्वल टू 1408/21। ये हो गया आपका 22/7 इंटू h²/4, इधर कितना ही आ जाएगा बोलो 3, ठीक है, यहाँ पे कितना हो गया 3h प्लस h, तो दैट विल बी 4h, दैट इज इक्वल टू 1408/21। 7 3 जा 21, 3 और ये 3 कैंसिल हो गया यहाँ पे, ठीक है, h², ये हो गया h³, ये h² है और ये h, तो ये हो गया h³, ठीक है, इनटू यहाँ पे 2 2 जा 4, 2 11 जा 22, 2 अगेन 2 जा 4, 11 इंटू 2 कितना हो गया भाई साहब 22, 22 नीचे कुछ बच रहा है भाई साहब, नहीं, 2 2 जा 4, ठीक है, दिस इज इक्वल टू 1408। यहाँ पे भाई साहब नीचे कुछ नहीं बचा है, ठीक है, कह रहे, तो h³ की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1408/22, 2 11 जा 22, 2 7 जा 14, 0 2 4 जा 8, 11 यहाँ पे हो गया आपका 704, 11 6 जा 66, 11 4 जा 44, तो ये हो गया आपका 64। h की वैल्यू कितनी हो जाएगी क्यूब रूट ऑफ 64, दैट इज बेसिकली क्यूब रूट ऑफ 4⁻3, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, तो देयरफॉर h की वैल्यू कितनी हो गई, h की वैल्यू हो गई भाई साहब 4 सेंटीमीटर, ठीक है। सो फाइंड द टोटल हाइट ऑफ द रूम, तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं देयरफॉर टोटल हाइट ऑफ रूम इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, ठीक है। और वाला सवाल भी देख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, एन एम्प्टी कोन ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर एंड हाइट 12 सेंटीमीटर, तो आपका भाई साहब यहाँ पे एक एम्प्टी कोन है, एन एम्प्टी कोन, ठीक है, यहाँ पे एक एम्प्टी कोन है, इसका रेडियस आपको दिया हुआ है भाई साहब 3 सेंटीमीटर है, सो रेडियस इज बेसिकली हाउ मच, ये हो गया कितना आपका 3 सेंटीमीटर, ठीक है, एन एम्प्टी कोन ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर एंड हाइट 12 सेंटीमीटर, तो इस कोन का भाई साहब आपको हाइट दिया हुआ है कितना 12 सेंटीमीटर, so this height is 12 सेंटीमीटर, ठीक है, and height ice cream is filled in it so that the lower part of the cone which is 1/6 of the volume of the cone, so that lower part of the cone which is 1/6 of the volume of the cone is unfilled but hemisphere is formed on the top, find the volume of ice cream। समझ में आ रहा है भाई साहब, यहां तक भरा है, मतलब 1/6 is still unfilled, आपको यहाँ पे 1/6 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द कोन इज अनफिल्ड विथ आइसक्रीम, ठीक है, तो टोटल वॉल्यूम ऑफ द कोन यहाँ पे कितना हो जाएगा भाई साहब, टोटल वॉल्यूम ऑफ कोन ये हो गया आपका 1/3 पाई r²h, so that will be 1/3 into 22/7 into r का स्क्वायर that is 3 का स्क्वायर that is 9 into h that is 12, ठीक है, क्लियर है, तो ये हो गया भाई साहब आपका 3 और 3 कैंसिल, यहाँ पे आपका कितना आ रहा है 66 into 12/7, ठीक है, ये हो गया आपका टोटल वॉल्यूम ऑफ द कोन, इसका आपका 1/6 so that the lower part of the cone which is 1/6 of the cone is unfilled, तो filled कितना है 5/6, ठीक है, so volume of ice cream, therefore volume ऑफ आइसक्रीम क्या हो जाएगा इस कोन का 5/6 वॉल्यूम विच इज इंटू 5/6 सेंटीमीटर क्यूबिक, तो ये और 6 11 जा 66, ठीक है, यहाँ पे कितना हो गया भाई साहब 12 इंटू 11 हो गया 132, 132 इंटू 5, 2 5 जा 10, 5 3 जा 15, 116, 5 1 जा 5, 16, तो 660/7 सेंटीमीटर क्यूब, ये हो गया वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम इन द कोन, ठीक है, इन द कोन। अभी वॉल्यूम ऑफ ये वाला पार्ट यहाँ पे भरा हुआ है विच इज हाउ मच 2/3 पाई r³, ठीक है, तो इसे कितना हो जाएगा भाई साहब, दिस विल बी वॉल्यूम ऑफ
वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम, वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम इन द हेमिस्फेरिकल पार्ट, इन द हेमिस्फेरिकल पार्ट, ये हो गया आपका कितना 4/3 पाई आर क्यूब, सॉरी 2/3 है ना, दिस विल बी 2/3 पाई आर क्यूब, सो दैट्स गोइंग टू बी हाउ मच, ये आपका पैसा हेमिस्फेरिकल, तो ये हो गया 2/3 इंटू 22/7 इंटू आर का क्यूब, दैट्स हाउ मच 3 इंटू 3 इंटू 3 3 इंटू 3 इंटू 3, ये भाई साहब हो गया कैंसिल, यहाँ पे कितना हो गया 44 इंटू 9, 4 9 जा 36, 9 4 जा 36, 37 38 39, ये हो गया, ठीक है, सो दैट विल बी हाउ मच 396/7 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, तो टोटल वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम यहाँ पे कितना हो गया, देयरफॉर टोटल वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम यहाँ पे हो गया भाई साहब आपका 660/7 प्लस 396/7, सो दैट्स गोइंग टू बी हाउ मच 7, ये हो गया 6, 9 + 6 15, 6 + 1 7 8 9 10, ठीक है, इतना सेंटीमीटर क्यूबिक आ गया, सो यहाँ पे 71056 है, 7 1 जा 7, 7 5 जा 35, हो गया 6, ये हो गया 0, 7 8 जा 56, 7 5 जा, तो अपना कितना आ गया 150.85 सेंटीमीटर क्यूबिक, ठीक है, दिस विल बी द टोटल वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम, क्लियर है, आर वी क्लियर ऑन दिस, 5/6 इसलिए है क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है कि कोन के पोर्शन में 1/6 अनफिल्ड है, मतलब कैसा है, देखो आइसक्रीम यहां तक भरा है और ऊपर ये थोड़ा सा हेमिस्फीयर पार्ट भरा हुआ है, तो अगर 1/6 आपका खाली है तो भरा कितना है 5/6, तो आपको यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम कैलकुलेट करना है, तो कोन का पहले वॉल्यूम निकाला आपने और उस वॉल्यूम का 5/6 पोर्शन निकाला, जो आपका आइसक्रीम का वॉल्यूम हो गया कोन में, अभी उसके साथ आपने हेमिस्फेरिकल का वॉल्यूम ऐड किया, तो वो आपको टोटल वॉल्यूम देगा, ठीक है, क्लियर है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, ओके। If a line is drawn parallel to one side of a triangle to intersect the other two sides at distinct points, prove that the other two sides are divided in the same ratio, ठीक है, तो आपका भाई साहब यहाँ पे एक ट्रायंगल लिया है आपने, so let's say एक ट्रायंगल लिया हुआ है, a line is drawn parallel to one side of a triangle, तो आपका भाई साहब यहाँ पे एक लाइन को आपने ड्रॉ किया है, a line is drawn parallel to one side of a triangle, ठीक है, to intersect the other two sides at distinct points, other two sides कैसे होगा भाई, मिसप्रिंट हुआ है, बीपीडी थियरम है बेसिकली, ठीक है, अदर टू साइड्स कैसे होगा, एक ही साइड को तो कट करेगा, एक साइड से पैरेलल और हाँ मतलब ये साइड ये इस साइड के पैरेलल है, दो साइड को मीट कर रहा है, ठीक है, ओके, सो यहां पे अगर लेट्स से ए बी सी, आपको ये सारा कुछ लिखना पड़ेगा, तो यहां पे एक्स वाई है, ठीक है, तो आपको यहां पे क्या प्रूव करना है, गिवन ट्राइंगल ए बी सी, और क्या गिवन है बोलो, एक्स वाई इज पैरेलल टू बी सी, टू प्रूव, यहां पे आपको भाई साहब टू प्रूव दैट इज ए एक्स बाई एक्स बी विल बी इक्वल टू ए वाई बाई वाई सी, ये आपको प्रूव करना है, ठीक है, क्लियर है, ओके, सो हम यहां पे क्या करेंगे भाई साहब, इन प्रूफ में आपका भाई साहब हो गया इन ट्राइंगल्स, कौन कौन से ट्राइंगल भाई साहब, दो ही ट्राइंगल दिख रहे हैं यहाँ पे, ए एक्स वाई एंड ए बी सी, ठीक है, ए बी सी, तो एंगल ए भाई साहब एंगल ए के बराबर है कि नहीं, कॉमन एंगल, दिस विल बी ड्यू टू बीइंग कॉमन एंगल, और क्या हो जाएगा बोलो, कोई भी एक एंगल उठा लो, ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर होगा, ऑब्वियसली ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर होगा, भाई आपका कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, तो एंगल ए एक्स वाई विल बी इक्वल टू एंगल ए बी सी बीइंग corresponding
एंगल्स, ठीक है, क्लियर है, ओके। तो ये दोनों एंगल्स भाई साहब आपके बराबर हो गए, तो देयरफॉर ट्राइंगल AXY इज सिमिलर टू ट्राइंगल ABC। यहाँ पे रीजन क्या हो जाएगा बोलो, A टेस्ट, A टेस्ट है, ये दोनों भाई साहब क्या हो गए, सिमिलर। हाँ नहीं, लेकिन रेशियो तो आप ऐसे प्रूव कर ही सकते हैं ना, किसमें किसमें, लेकिन इससे भी कर सकते हैं आप, अब एक जगह ही पहुंचना है, ठीक है। AXY और ABC भाई साहब आपका ये हो गया, ठीक है। तो AXY और ABC के हिसाब से आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे बोलो, देखो देयरफॉर हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, AX by AB will be equal to X, AX by AB will be equal to AY by AC, ठीक है। ये हो गया भाई साहब आपका कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स, ठीक है, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स, ठीक है, कह रहे, ओके। अभी इसमें से अगर हमने देखो इसका टेकिंग, हमको यहाँ पे AX by XB करना है ना, AB by AX माइनस AX, तो यहाँ पे टेकिंग रेसिप्रोकल्स, आपने भाई साहब यहाँ पे रेसिप्रोकल्स ले लिया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बोलो, AB by AX इज इक्वल टू AC by AY। दौड़े पड़ रहे क्या, ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं भाई साहब, टेकिंग रेसिप्रोकल्स, subtracting one from both sides, यहाँ पे क्या हो जाएगा बोलो, AB by AX minus 1 is equal to AC by AY minus 1, so this will be AB minus AX by AX is equal to AC minus AY by AY, ठीक है। तो AB minus AX की वैल्यू कितनी हो जाएगी, दिस विल बी BX, ठीक है, BX या XB भी लिख सकते हैं यहाँ पे हमने क्योंकि लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका XB by AX इज इक्वल टू AC माइनस AY, तो ये कितना हो जाएगा भाई साहब, YC अपॉन AY, ठीक है। अगेन टेकिंग रेसिप्रोकल्स, ठीक है, यहाँ पे AX by XB विल बी इक्वल टू AY by YC, ठीक है, हेंस प्रूफ। आप भाई साहब स्टेटमेंट में प्रूफ लिखेंगे, ठीक है, जो आपका स्टेटमेंट दिया हुआ है उसी को प्रूफ लिखेंगे, क्लियर है, आर वी क्लियर। The angle of elevation of the top of a tower 24 meter high from the foot of another tower in the same plane is 60 degrees, ठीक है। तो आपके भाई साहब दो टावर्स हैं यहाँ पे, The angle of elevation of the top of a tower 24 meter high from the foot of another tower in the same plane is 60 degrees. तो let's say भाई साहब, अच्छा यहाँ पे the angle of elevation of the top of the second tower from the foot of the first tower is 30 degrees. Okay, चलिए भाई साहब ये वाला हो गया आपका let's say 60 degrees और ये वाला हो गया आपका 30 degrees, ठीक है। Angle of elevation of the top of a tower 24 meter high from the foot of another tower, top of a tower, तो ये हो गया आपका 24 मीटर हाइट, दिस इज बेसिकली 24 मीटर हाई ये है, ठीक है। फ्रॉम द फुट ऑफ अनदर टावर इन द सेम प्लेन इज, ये वाला भाई साहब हो गया आपका 60 डिग्रीज, ठीक है। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द सेकेंड टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द फर्स्ट टावर इज 30 डिग्रीज, ये वाला हो गया आपका 30 डिग्रीज, क्लियर है, ओके। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू टावर्स एंड द हाइट ऑफ द अदर टावर, तो आपको भाई साहब ये वाला डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, ठीक है। दिस डिस्टेंस इज समथिंग दैट इज रिक्वायर्ड टू बी फाउंड, ये वाला डिस्टेंस, और ये हाइट ऑफ द सेकेंड टावर, ठीक है, हाइट ऑफ द सेकेंड टावर, ये वाला भी आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो इधर हो गया आपका भाई साहब फर्स्ट टावर, सिर्फ क्रिश एकमात्र लिख रहा है भाई साहब,
बाकी सब टाइम पास कर रहे हैं, देख कितने मन लगाकर वो स्केल और बनाकर लिख रहा है भाई साहब, ठीक है। ओके, ये हो गया भाई साहब आपका फर्स्ट टावर, ठीक है, और ये हो गया आपका सेकंड टावर, दिस इज बेसिकली द सेकंड टावर, ठीक है। क्लियर है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, ठीक है। ए बी सी डी, मैं तेरी तारीफ कर रहा हूँ, सच में तारीफ कर रहा हूँ, अच्छी बात है। कोई यहाँ पे मेरे को नहीं दिख रहा, ये तो पता नहीं यहाँ पे क्या बंडलबाजी कर रहे हैं दोनों बैठ के यहाँ पे, ठीक है। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, ओके। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दिस विल बी, इस ट्राइंगल में अगर देखोगे, इन ट्राइंगल डी बी सी, tan 60 की वैल्यू क्या हो जाएगी बोलो, DC बाई बी सी, है कि नहीं। tan 60 की वैल्यू होती है भाई साहब आपका √3, दिस विल बी इक्वल टू DC, दैट इज 24 बाई BC। तो BC की वैल्यू हो गई आपकी 24 बाई √3, दोनों को भाई साहब √3 से मल्टीप्लाई कर दो, सो दिस इज गोइंग टू गिव यू हाउ मच, 24 √3 अपॉन 3, 3 8 हो गया 24, ये हो गया 8 √3, √3 की वैल्यू याद रखना 1.71 होती है, ठीक है। तो BC की वैल्यू कितनी हो जाएगी बोलो, 8 इंटू 1.71, दैट इज गोइंग टू गिव यू हाउ मच, 8 1 8, 7 8 56, 8 1 8 प्लस 5 13, तो BC की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब, 13.68 सेंटीमीटर। दिस विल बी द डिस्टेंस बिटवीन द टू टावर्स। क्लियर क्लियर क्लियर, ओके। एक चीज याद रखना, जब आप फाइनल आंसर लिख रहे हो तब ऐसे लिखोगे, लेकिन जब इसी BC को आप यूज कर रहे हो इस AB को फाइंड आउट करने के लिए, तो कीप इट इन दिस फॉर्मेट, समझ में आ रहा है, वरना √3 का फायदा आप नहीं उठा पाओगे। तब BC मतलब 13.68 मत लेना, ये तुम्हारा फाइनल आंसर है। अभी जैसे तुमको यहां पे क्या फाइंड आउट करना है, टावर का हाइट, ठीक है। सो यू विल कम टू विच ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ABC, इन ट्राइंगल ABC tan 30 की वैल्यू क्या हो जाएगी बोलो, AB बाई BC, ठीक है। अभी इस BC की वैल्यू 13.68 मत लेना, टेक इट एज 8 √3, ठीक है। सो टेक इट एज भाई साहब 8 √3, क्यों, क्योंकि इधर तुमको tan 30 में क्या मिलेगा, 1 बाई √3, ठीक है। ये हो गया AB, तो देयरफॉर AB की वैल्यू क्या हो जाएगी, दिस विल बी, ठीक है, 8 √3 अपॉन 3, ठीक है, ये कैंसिल हो गया, ये हो गया 8, तो AB की वैल्यू हो गई भाई साहब 8 सेंटीमीटर, ठीक है। क्लियर है। अगर आपने यहाँ पे 13.68 यूज कर लिया तो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। फॉर कैलकुलेशन पर्पसेस के लिए, फाइनल आंसर के लिए आप √3 को 1.71 में कन्वर्ट कीजिए, लेकिन जब तक आप कैलकुलेशन में यूज कर रहे हैं तब तक उसको √3 रहने दीजिए, ठीक है। क्लियर है। तो अपन यहाँ पे आंसर क्या लिखेंगे, देयरफॉर डिस्टेंस बिटवीन द टू टावर्स, डिस्टेंस बिटवीन द टू टावर्स इज 13.68, ये मीटर होगा ना यार, ये तो मीटर, सॉरी, दिस विल बी मीटर्स, ठीक है। 13.68 मीटर्स एंड हाइट ऑफ सेकेंड टावर, हाइट ऑफ सेकेंड टावर इज 8 मीटर्स। क्लियर, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, ठीक है, ओके। ये लंबा सवाल है भाई साहब, ओके। अ स्फेरिकल बलून ऑफ रेडियस r, तो यहां पे भाई साहब एक स्फेरिकल बलून है, प्रसन्ना, अ स्फेरिकल बलून ऑफ रेडियस r subtends an angle 60 डिग्री एट द आई ऑफ एन ऑब्जर्वर, ठीक है। तो यहाँ पे भाई साहब आपका स्फेरिकल बलून है ऑफ रेडियस r, ये समझ में आ रहा है भाई साहब, यहाँ पे ऑब्जर्वर है और ऑब्जर्वर पे कितना एंगल सबटेंड हो रहा है, 60 डिग्री इसका, ठीक है। ये ऑब्जर्वर का आई है, ये एक स्फेरिकल बलून है, ठीक है, ओके। इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन
ऑफ इट्स सेंटर इज 45 डिग्री फ्रॉम द सेम पॉइंट। तो मतलब यहां पे समझ लो ये सेंटर हो गया, दिस इज बेसिकली द सेंटर, इसका एंगल ऑफ एलिवेशन, अभी भाई साहब एंगल ऑफ एलिवेशन बनाना है तो मतलब यहां पे आप इसका परपेंडिकुलर ड्रॉप कीजिए, इस पे इसको इससे कनेक्ट कीजिए और ये वाला जो बीच का लाइन जाएगा दिस विल बी द एंगल ऑफ एलिवेशन। ये वाला एंगल ऑफ एलिवेशन है देखो, ठीक है, मतलब ऐसा इसके साथ जो बना रहा है, ठीक है। तो ये वाला एंगल ऑफ एलिवेशन भाई साहब कितना है 45 डिग्री, ये वाला एंगल ऑफ एलिवेशन है आपका 45 डिग्री, ठीक है, फ्रॉम द सेम पॉइंट। देन प्रूव दैट द हाइट ऑफ द सेंटर ऑफ द बलून इज √2 टाइम्स इट्स रेडियस, ठीक है। जो हाइट है सेंटर ऑफ द बलून का, ये हाइट, ठीक है, इज √2 टाइम्स इट्स रेडियस, इसके रेडियस का √2 टाइम्स है, ठीक है। ओके, तो लेट्स से हमने भाई साहब इसको ज्वाइन कर दिया, यहाँ पे इसको ज्वाइन किया इधर और इसको ज्वाइन किया इधर, ठीक है। तो ऑब्वियसली बात है कि भाई साहब यहाँ पे ये वाला कितना हो जाएगा 90 और ये वाला भी भाई साहब कितना हो जाएगा 90। समझ में आ रहा है भाई साहब? क्यों? क्योंकि ये भाई साहब क्या है, tangents drawn to the same circle from the same external point, ठीक है। और भाई साहब रेडियस और टेंजेंट आपके परपेंडिकुलर होते हैं, ये दोनों ट्रायंगल्स भी आपके क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे, ठीक है, क्योंकि ये वाला साइड और ये वाला साइड बराबर, ये वाला तो कॉमन साइड हो गया और रेडियस रेडियस बराबर, तो ये दोनों ट्रायंगल्स आपके क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। अगर आपके भाई साहब ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो आप भाई साहब बताओ यहाँ पे ये वाला देखो, इस आपको बेसिकली ये वाला हाइट कैलकुलेट करना है और इस रेडियस को यूज करते हुए करना है, ठीक है। तो ये वाला रेडियस है देखो और आपको ये वाला हाइट कैलकुलेट करना है। सो लेट्स से दिस इज बेसिकली द हाइट दैट इज इन क्वेश्चन, ठीक है, ये आपका क्वेश्चन में है। ये रेडियस बताओ, तो बताओ मुझे अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए तो ये कितने के एंगल बन जाएंगे, 30-30 के हो जाएंगे, ये 30-30 के एंगल हो गए, ठीक है। तो अभी हम यहां पे क्या लिख सकते हैं, r अपॉन ये वाला हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज विल बी इक्वल टू हाउ मच, sin 30। क्लियर है, समझ में आ रहा है ये? ओके, इसी को यूज करते हुए h भी कैलकुलेट करना है आपको, h अपॉन दिस हाइपोटेन्यूज, दिस विल बी इक्वल टू हाउ मच, sin 45। ऐसे h और r में आपको रिलेशनशिप निकालना है, ठीक है। तो जैसे मैंने यहां पे बताया आपको, ये वाला यहां पे देखो r परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है, r अपॉन लेट्स से ये हो गया आपका o a, लेट्स से दिस इज b, दिस इज c और ये हो गया आपका सेंटर। चलो भाई साहब ये d ले लेते हैं हम अपनी, ठीक है, क्लियर है? ओके, r अपॉन o c, r अपॉन o c ये कितना हो जाएगा बोलो, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट विल बी sin 30। क्लियर है, समझ में आ रहा है ये? और दूसरा वाला क्या करोगे भाई साहब, यहां पे देखो h अपॉन ओ सी, h अपॉन ओ सी ये आपका परपेंडिकुलर हाइट अपॉन ओ सी, दैट विल बी इक्वल टू कितना, sin 45, ठीक है। इन दोनों को कर दो डिवाइड, ठीक है, r बाई ओ सी अपॉन h बाई ओ सी इज इक्वल टू sin 30 अपॉन sin 45। मामला समझ में आ रहा है भाई साहब? यहां पे OC और OC कैंसिल हो गया, ठीक है। यहां पे क्या हो जाएगा आपका R बाई H, दिस विल बी इक्वल टू sin 30 की वैल्यू, sin 30 की वैल्यू हो गई हाफ, sin 45 की वैल्यू 1/√2, तो 1/√2, ये √2 ऊपर जाएगा भाई साहब और ये हो गया 2, ठीक है। तो R बाई H की वैल्यू कितनी हो गई, 1/√2, तो h की वैल्यू क्या हो गई भाई साहब, √2r, यही प्रूव करना था देखो, ठीक है। प्रूव दैट द हाइट ऑफ द सेंटर ऑफ द बलून इज √2 टाइम्स इट्स रेडियस। ये तो मैंने आपको मतलब एकदम ये दे दिया, अभी आपको यहां पे सब लिखना पड़ेगा सजाकर, ठीक है। सो हम यहां पे लिखेंगे भाई साहब, देयरफॉर यहां पे आपको बताना पड़ेगा इन ट्रायंगल्स, कौन कौन से ट्रायंगल्स देखो, OCD एंड OCB, ठीक है, क्लियर है। O इज बेसिकली यहां पे आपका ऑब्जर्वर, ठीक है, O को आप बोल सकते हैं दिस इज बेसिकली ऑब्जर्वर, दिस इज द ऑब्जर्वर, ठीक है। ये हो गया भाई साहब आपका सेंटर ऑफ द बलून,
this is the center of the balloon, this is the center of the balloon, ठीक है, और this is basically the balloon, okay, ये हो गया हाइट, ठीक है, h is the height। तो इन ट्रायंगल्स OCD एंड OCB आपका क्या क्या बराबर हो जाएगा बोलो, OD will be equal to OB, आप यहां पे लिखेंगे क्या भाई साहब, tangents from the same external point to a circle are equal in length, ठीक है, ये हो गया भाई साहब, OD इज इक्वल टू OB, ये दोनों बराबर, OC इज इक्वल टू OC, क्यों भाई साहब, कॉमन साइड, और क्या हो गया भाई साहब आपका, CD इज इक्वल टू CB, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, ठीक है। तो देयरफॉर यहां पे क्या हो जाएगा, ट्रायंगल OCD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल OCB, रीजन SSS, ठीक है। तो अपन क्या लिख सकते हैं यहां पे, देयरफॉर DOC, एंगल DOC will be equal to angle BOC, will be equal to angle BOC, corresponding parts of congruent triangles, so therefore यहाँ पे अपन क्या लिख सकते हैं भाई साहब, BOC is equal to half of angle BOD, that is equal to half into 60 degrees, that is 30 degrees। ये 30 डिग्रीज जो आप यहाँ पे यूज कर रहे हैं, इसके लिए सिर्फ आपको प्रूव करना है, ठीक है। ये 30 डिग्रीज आप यहाँ पे यूज कर रहे हैं, sin 30 की वैल्यू, ठीक है। अभी आप यहाँ पे लिख दो भाई साहब, इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल भाई साहब, BOC, इन ट्राइंगल BOC, ठीक है, आर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट इज OC इज इक्वल टू sin 30, ठीक है। और इधर क्या लिख दोगे भाई साहब, इन ट्राइंगल CAO, ठीक है, या ट्राइंगल इन ट्राइंगल AOC, ठीक है, क्लियर है, H by OC इज इक्वल टू sin 45। अभी आप भाई साहब इस रिलेशनशिप को प्रूव करें। आर बी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, हम, ठीक है। जरा इसको करने की कोशिश कीजिए, तब तक ट्राई एंड डू दिस। A chord of a circle of radius 14 centimeter suspends an angle of 60 degree at the center। तो भाई साहब यहाँ पे है एक सर्कल, ठीक है, और एक कोई कॉर्ड है इसका, chord of a circle of radius 14 centimeter subtends an angle of 60 degree at the center। तो भाई साहब यहाँ पे कितने का एंगल बन रहा है, ये वाला एंगल कितने का हो गया भाई साहब आपका, 60 डिग्रीज का, ठीक है, क्लियर है, ओके। लेट्स से ये हो गया आपका O, ये हो गया chord AB is suspending an angle of 60 degree at the center। Find the area of the corresponding minor segment of the circle। ये हो गया आपका भाई साहब माइनर सेगमेंट, इसका एरिया आपको फाइंड आउट करना है। तो क्या करेंगे भाई साहब हम यहाँ पे, देयरफॉर एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट, ये कितना हो जाएगा बोलो, दिस विल बी एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB, ठीक है, क्लियर है। अभी यहां पे देखो ट्राइंगल AOB किस तरह का ट्राइंगल है, इक्विलैटरल है, क्योंकि ये 60 है, ठीक है। तो अपन यहां पे बोल सकते हैं एंगल AOB प्लस एंगल OAB प्लस एंगल OBA, दिस हैज टू बी इक्वल टू 180। AOB की वैल्यू कितनी है बोलो, 60 डिग्रीज, और यहां पे अपन क्या लिख सकते हैं, एंगल OAB इज इक्वल टू एंगल OBA, वाई भाई साहब आपका, बिकॉज सिंस OA इज इक्वल टू OB, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, ठीक है, कह रहे। तो यहाँ पे आपका हो गया 60 डिग्रीज प्लस किसी एक को पकड़ लो भाई साहब, यहाँ पे ट्वाइस ऑफ एंगल OBA लिख दो, है ना,
इसकी जगह भी OBA लिख सकते हो, तो ये हो गया आपका कितना 180। तो आपका भाई साहब OBA की वैल्यू कितनी हो जाएगी 180 माइनस 60 दैट इज 120, 120/2 कितना हो गया 60 एंड दिस विल बी इक्वल टू OAB। तो ये भी 60, ये भी 60। सो देयरफॉर हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर ट्रायंगल OAB इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल एंड एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल कितना होता है √3/4 साइड का स्क्वायर, ठीक है। सो आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB that will be equal to √3/4 into साइड का स्क्वायर दैट इज AB का स्क्वायर, या कोई भी एक साइड ले लो, OA का स्क्वायर ले लो यहाँ पे, ठीक है। सो दैट विल बी हाउ मच √3/4 इंटू रेडियस, रेडियस कितना है भाई साहब आपका ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर, ये हो गया 196, 4 4 जा 16, 4 9 जा 36, so this will be 49/√3, ठीक है। एरिया ऑफ द सेक्टर कितना हो गया यहाँ पे, एरिया ऑफ द सेक्टर दैट विल बी हाउ मच, एरिया ऑफ द सेक्टर विल बी हाउ मच, देखो एरिया ऑफ सेक्टर होगा θ/360 इंटू पाई r स्क्वायर माइनस 49/√3, ठीक है। क्लियर है, समझ में आ रही है। θ/360 मतलब हो गया कितना आपका 60/360, 60/360 हो गया भाई साहब आपका 1/6 इंटू पाई r का स्क्वायर दैट इज 3.14 इंटू r का स्क्वायर, अगेन r का स्क्वायर 196 है ना, 196 माइनस 49/√3, तो यहाँ पे हो गया भाई साहब 2 3 जा 6, 2 9 जा 18, 2 8 जा 16, ठीक है। और कितना हो जाएगा भाई साहब 3 1 जा 3, 3 1 जा 3 भाई साहब कितना हो गया, 3 1 जा 3, 0 3 4 जा 12। तो अपन यहाँ पे अगर 49 को बाहर निकालते हैं तो इधर कितना होगा बोलो 2 इंटू, तो ये हो गया 4 2 जा 8, 0 2 जा 0, 2 1 जा 2 माइनस 1.71 है कि नहीं, √3 की 1 की वैल्यू डाल दी आपने यहाँ पे, ठीक है। सो दिस विल बी हाउ मच 49 इंटू 49 टू 8 से 1 गया भाई साहब आपका आ गया 7, 7 प्लस 3 हो गया आपका 10, ये 1 कैंसिल हो गया, ठीक है 0.37, इसको मल्टीप्लाई कर लो भाई साहब 49 इंटू 37, 9 7 जा 63, 4 7 जा 28, 340 इंटू 9 3 जा 27, 4 3 जा 12, 13 14, 3 7 plus 4 11, 4 plus 1 5 6 7 8, 1813, so that will be 18.13 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। कभी भी ऐसे कैलकुलेशंस में घबराना नहीं है, ठीक है। थोड़ा सा आपको समझदारी से काम लेना है। आप बोलोगे भाई साहब थोड़ा देखो यहाँ से अगर हमने कॉमन निकाला ना तो हमारे लिए आसान पड़ जाएंगी चीज़ें, ना कि इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो फिर माइनस करो, आपके एरर्स की अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ने लगेंगी। आप देखो यहाँ पे 98 आ रहा है, यहाँ पे 49 को बाहर निकाल सकते हो, 49 को बाहर निकाला तो यहाँ पे कितना बचेगा 2 इंटू 1.04 करोगे तो कितना आएगा 2.08, और √3 की वैल्यू तुमको मालूम है 1.71, इन दोनों को भाई साहब आपने किया तो 0.37 आ जाएगा 49, ये आपके लिए आसान पड़ जाएगा। थोड़ा सा सहूलियत से काम लेंगे, धैर्य से काम लेंगे, कोई डिफिकल्ट नहीं होगा, ठीक है। हालांकि जो मैंने आपको मेथड बताया है यहाँ पे कि आपने एरिया ऑफ ट्राइंगल को माइनस किया, लकीली यहाँ पे आपका जो ट्राइंगल था वो इक्विलैटरल ट्राइंगल था। अगर इक्विलैटरल ट्राइंगल नहीं होगा तो क्या करेंगे, हाँ तो आपका भाई साहब अगर इक्विलैटरल ट्राइंगल नहीं होगा, ठीक है, देन हाउ विल यू डू दिस। इक्विलैटरल ट्राइंगल अगर नहीं होगा तो कैसे करेंगे भाई साहब, यहाँ पे देखो समझ लो कोई भी ट्राइंगल है, ठीक है, लेट्स से ये ट्राइंगल आपका ये किसी सर्कल के अंदर है, ठीक है, तो भाई साहब कम से कम आइसोसेलेस तो होगा ना, इट हैज टू बी एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। इक्विलैटरल ना सही आइसोसेलेस तो मिनिमम उसको होना ही होना है, ठीक है। तो ये हो गया भाई साहब आपका कितना आर, लेट्स से ये एंगल कितना, ये तो आपको दिया हुआ है थीटा, ठीक है। ध्यान से देखो ये दोनों ट्राइंगल्स क्या हो जाएंगे भाई साहब आपके कॉन्ग्रुएंट, ठीक है, क्योंकि आपने भाई साहब यहाँ पे परपेंडिकुलर डाला है, ठीक है। तो लेट्स से ये हो गया भाई साहब आपका क्या O, ये हो गया A और ये हो गया आपका B, ठीक है। लेट्स से इसको आपने माना X, ठीक है। ये दोनों ट्राइंगल्स आपके कॉन्ग्रुएंट होंगे, RHS बोल लो भाई साहब या जो भी आप बोलना चाहो यहाँ पे, ठीक है। सो SSS भी बोल सकते हो क्योंकि परपेंडिकुलर फ्रॉम अ सेंटर ऑफ अ कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, ठीक है। तो AX और BX बराबर, ये आपका कॉमन साइड और ये दोनों भाई साहब बराबर, ठीक है।
तो जिस जिस तरह से भी आप बोलना चाहिए, ये दोनों ट्राइंगल्स आपके कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ओके, अभी मुझे इस ट्राइंगल का अगर एरिया निकालना है तो क्या होगा बोलो, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ इंटू बेस यहां पे क्या हो गया भाई साहब, कॉर्ड का लेंथ विच इज हाउ मच, ए बी, ठीक है, ए बी इंटू हाइट। अभी हम हाइट पे आते हैं। देखो हाइट को कैसे कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पे देखो ये आपका हाइट है ना, दिस इज बेसिकली हाइट। तो आपका ये वाला कितना हो जाएगा, ये अगर थीटा है तो ये वाला कितना हो जाएगा, थीटा बाई 2, ये हो जाएगा भाई साहब आपका थीटा बाई 2, है ना, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स है तो दो में बढ़ जाएंगे ये, ठीक है। ओके, इस हाइट को अपन क्या लिख सकते हैं बोलो, ओ एक्स बाई आर बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू कॉस थीटा बाई 2, ऐसा लिख सकते हो भाई साहब। तो ओ एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक्चुअली में यहाँ पे होगा क्या, हाफ ओ एक्स होगा ना, ठीक है। तो दिस विल बी हाउ मच, हाफ इंटू ए बी इंटू ओ एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी बोलो, आर कॉस थीटा बाई 2। अभी प्रॉब्लम ये है कि चलो यहाँ पे आप इस सवाल को अगर आप देखोगे ना, फॉर्चुनेटली यहाँ पे आपका इक्विलैटरल ट्राइंगल निकल गया और यहाँ पे आपको आर दिया हुआ है 14, ठीक है, लेकिन कॉर्ड का लेंथ आपको नहीं दिया हुआ है, यहाँ पे दिख रहा है कॉर्ड का लेंथ नहीं दिया हुआ है। तो आप इसको कैसे निकालोगे, तो अपने को भाई साहब अगर यहाँ पे इक्विलैटरल ट्राइंगल निकालना था, चलो इक्विलैटरल ट्राइंगल नहीं निकाला हमने, ए बी को आप कैसे निकालोगे भाई साहब, देखो इस वाले ट्राइंगल पे आओ, देखो इन ट्राइंगल, इन कौन सा ट्राइंगल, देखो इन ट्राइंगल ए एक्स ओ या ए ओ एक्स, भाई साहब ध्यान से देखो, ठीक है, ए एक्स बाई ए ओ, ये कितना हो जाएगा बोलो, ए एक्स बाई ए ओ परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट विल बी हाउ मच, साइन थीटा बाई 2 हो जाएगा, ये है कि नहीं, साइन थीटा बाई 2, ठीक है। तो यहां पे हो गया ए एक्स इज इक्वल टू ए ओ की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ए ओ साइन थीटा बाई 2, ठीक है। अभी ए ओ भाई ओके, तो अभी ए बी क्या होगा बोलो, ए बी होगा आपका ट्वाइस ऑफ ए एक्स, ठीक है, ए बी होगा आपका ट्वाइस ऑफ ए एक्स, तो मतलब हाफ इंटू ट्वाइस ऑफ ए ओ साइन थीटा बाई 2 इंटू आर कॉस थीटा बाई 2। बहुत ध्यान से देखना, यहाँ पे ए ओ मतलब क्या हो गया आपका आर ही तो हुआ, ठीक है, इसकी जगह पे अपन क्या लिख सकते हैं, आर लिख सकते हैं, ठीक है, ये और ये कैंसिल हो गया, ठीक है। तो आपका यहाँ पे कितना आ जाएगा बोलो, दिस विल बी आर स्क्वायर साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, ठीक है। एक शॉर्टकट इस्तेमाल नहीं कर सकते एक्चुअली तुम, क्योंकि आपका जो 2 साइन थीटा कॉस थीटा होता है ना, उसकी वैल्यू होती है साइन 2 थीटा, लेकिन आपने वो पढ़ा नहीं है तो आप उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते यहाँ पे, ठीक है। क्लियर है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल। इस तरह से आपका भाई साहब ये क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ द ट्राइंगल आ जाएगा तुम्हारा। यहाँ पे एरिया ऑफ द ट्राइंगल कितना आता है देखो, ये आया था ना, देखो √3/4 इंटू ए का स्क्वायर कितना आता है देखो, 49√3 आया था। इसको कर लो, देखो यहाँ पे आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई 196, साइन थीटा बाई 2 मतलब साइन 60/2 मतलब साइन 30 मतलब कितना हो गया तुम्हारा 1/2 एंड कॉस थीटा बाई 2 मतलब कॉस 30 दैट इज √3/2, ठीक है। तो ये हो गया 2 2 4 4 4 16, वही आया देखो 49√3, ठीक है, 49√3 सेम। क्लियर, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल। यहाँ पे तुमको एडवांटेज मिला है इक्विलैटरल ट्रायंगल का, लेकिन सारे सवालों में एडवांटेज नहीं मिलेगा। अगर नहीं मिलेगा तो इस तरह से आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। क्लियर है। एक्चुअली में आप यहाँ पे डायरेक्टली लिख सकते हो r²/2 साइन थीटा, लेकिन ये जो साइन थीटा का अराइवल है ये आपके कोर्स में नहीं है। 2 साइन थीटा कॉस थीटा आपका साइन थीटा होता है, साइन 2 थीटा होता है, वो आपके कोर्स में नहीं है, इसलिए हम उसको एक्सक्लूड करेंगे, ठीक है। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ओके ओके ओके। ये क्या है भाई साहब, गोला गोला क्या है? ओके, रेशियो ऑफ द 11th टर्म टू द 17th टर्म ऑफ एन एपी इज 3:4। फाइंड द रेशियो ऑफ द 5th टर्म टू द 21st टर्म, ठीक है। तो अपन मान लेते हैं लेट ए बी द फर्स्ट टर्म एंड डी द कॉमन डिफरेंस। द रेशियो ऑफ द 11th टर्म, तो T11 क्या हो जाएगा a + 10d, ठीक है, एंड द 17th टर्म T17 क्या हो जाएगा a + 16d, ठीक है। क्लियर है, T17 हो गया भाई साहब। द रेशियो ऑफ द 11th टर्म, तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है T11/T6,
T17 is equal to 3/4. So that will be how much? A plus 10D upon A plus 16D is equal to 3/4. क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं इसको, 4A plus 40D is equal to 3A plus 16 3 कितना हो गया आपका 48D. तो आपका 4A माइनस, तो ये हो गया आपका भाई साहब A, और इधर कितना हो गया बोलो 48 माइनस 40, तो ये हो गया आपका 8D. A इज इक्वल टू 8D. ठीक है. फाइंड द रेशियो ऑफ द फिफ्थ टर्म टू द 21st टर्म ऑफ द सेम AP. तो फिफ्थ टर्म आपका क्या हो जाएगा बोलो यहाँ पे, फिफ्थ टर्म विल बी A प्लस 4D, है ना, एंड 21st टर्म आपका क्या हो जाएगा A प्लस 20D. तो A की जगह पे क्या लिख सकते हो बोलो 8D लिख सकते हो प्लस 4D, तो ये कितना हो गया बोलो 12D, और यहाँ पे 8D प्लस 20D, दैट विल बी हाउ मच 28D. ठीक है. ये रेशियो फाइंड करना है, मतलब T5/T21. सो दैट इज गोइंग टू बी हाउ मच 12D अपॉन 28D. ये कैंसिलम 4 3 12, 4 7 28. तो ये रेशियो कितना ही हो जाएगा 3:7. क्लियर है? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ओके. 250 logs are stacked in the following manner. 22 logs in the bottom. शायद एनसीईआरटी में भी सवाल है ना. 21 in the next and 20 in the next and so on. In how many rows are 250 logs placed and how many logs are there in the top row? ठीक है. तो आपका भाई साहब यहाँ पे A की वैल्यू क्या हो जाएगी बोलो, बॉटम रो में कितना है 22. D की वैल्यू यहाँ पे कितनी होगी, देखो पहले वाले रो में 22 लॉग्स है, दूसरे वाले रो में 21, तो मतलब D कितना हो गया -1, है ना. ठीक है. D की वैल्यू -1 होगी. टोटल 250 लॉग्स है, मतलब आपको यहाँ पे n इन हाउ मेनी रोज पूछा है ना, तो n फाइंड आउट करना है. Sn की वैल्यू दी हुई है यहाँ पे कितनी है 250. ठीक है. तो Sn मतलब हो गया 250 इज इक्वल टू n/2, दैट इज n/2 इंटू 2A 2 इंटू 22 प्लस n-1 इंटू D, दैट इज -1. ठीक है. तो ये हो गया आपका भाई साहब 500 इज इक्वल टू n/2. ठीक है. सॉरी 500 इज इक्वल टू n, और ये हो गया कितना आपका 44, ये हो गया -n, तो ये हो गया -n, और ये हो गया आपका +1. क्या सही आ रहे हैं भाई साहब 44 + 1, है ना. 22 is 44, n इंटू -1 हो गया -n, -1 इंटू -1 हो गया +1. ठीक है. तो ये हो गया कितना भाई साहब आपका n 45 माइनस n, ये हो गया आपका 500. सो ये हो गया आपका -n का स्क्वायर प्लस 45n, ये हो गया आपका 500, ये हो गया 45n, और ये हो गया -n का स्क्वायर. तो इधर कितना हो जाएगा भाई साहब, दिस विल बी n का स्क्वायर इधर आया. ठीक है. -45n. ठीक है. n का स्क्वायर -45n प्लस 500 इज इक्वल टू 0. 500 है भाई साहब 50 इंटू 10 नहीं 45 चाहिए ना. $25 इंटू 20 है ना. 25 इंटू 20 500 आ जाएगा. 25 इंटू 20, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं n स्क्वायर -25n -20n प्लस 500 इज इक्वल टू 0. n इंटू n -25 -20 इंटू n -25 इज इक्वल टू 0. तो n -25 इंटू n -20 इज इक्वल टू 0. सो ईदर n -25 इज इक्वल टू 0 और n -20 इज इक्वल टू 0. तो n की वैल्यू 20 और n की वैल्यू 25. बता सकते हैं ये ऐसा क्यों है, दो आंसर्स क्यों मिल रहे हैं और दोनों वैलिड आंसर्स हैं, क्यों दो आंसर क्यों मिलेंगे और दोनों वैलिड आंसर्स क्यों हैं? क्योंकि देखो ये डिक्रीजिंग एपी है. ठीक है. डिक्रीजिंग एपी है, इसके लिए क्या हो जाएगा भाई साहब,
20 से लेकर 25 तक सारे टर्म्स को तुम ऐड करोगे ना तो वो 0 देगा तुमको, समझ में आ रहा है? 20 से लेकर 25 तक, तो तुम्हारा जो सम ऑफ n टर्म्स हुआ है 20 तक, उसके बाद अगर तुम सम ऑफ 25 टर्म्स भी करोगे तो सम ऑफ 20 टर्म्स एंड सम ऑफ 25 टर्म्स इन दिस एपी विल बी द सेम, बिकॉज यहां पे 20 से लेकर 25 के टर्म्स को अगर तुम ऐड करोगे तो वो 0 दे देगा, क्योंकि एक बीच में आपका नेगेटिव होना चालू हो जाएगा। समझ में आ रहा है ये? सो इसके लिए आपका आंसर क्या होगा? यहां पे आंसर क्या होगा? हाउ मेनी नंबर ऑफ रोज? 20। ठीक है, क्लियर है? आर वी क्लियर? क्यों 20? क्योंकि यहां पे तुम्हारा सम नेगेटिव नहीं आ सकता, लॉग्स है। ठीक है, सो दिस विल बी बेसिकली हाउ मेनी लॉग्स आर देयर इन दैट। सो हम यहां पे बोलेंगे देयरफॉर देयर आर 20 रोज। ठीक है, ओके। नाउ हमको यहां पे भाई साहब ये तो 20 हो गया, नंबर ऑफ Tn, तो ये कितना हो जाएगा भाई साहब? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए की वैल्यू कितनी है भाई साहब? 22 प्लस 20 माइनस 1 इंटू डी, दैट इज माइनस 1। तो ये हो गया आपका कितना? 22 19 इंटू माइनस 1, तो ये हो गया माइनस 19। तो कितना आ गया भाई साहब यहाँ पे? 3 लॉग्स आर देयर इन द टॉप रो। ठीक है, क्लियर है? समझ में आ रहा है? देखो मैं आपको बता दे रहा हूँ, जैसे आप बोल रहे हो ना कि ये भाई साहब ये 25 का क्या हो जाएगा, तो देखो T25 अगर आप देखोगे तो क्या आएगा? T25 की वैल्यू आ जाएगी 22 प्लस 25 माइनस 1, दैट इज हाउ मच? 24 इंटू माइनस 1, तो ये कितना हो गया बोलो? 22 माइनस 24, दैट इज माइनस 2। क्या माइनस 2 लॉग्स ऑफ वुड हो सकते हैं? नहीं। ठीक है, तो अर्थमेटिकली अगर देखोगे तो ये सही है कि S20 की वैल्यू भी आपकी कितनी है? 250, और S25 की वैल्यू भी आपकी 250 होगी। लेकिन ये जो 20 से लेकर 25 है कुछ ऐसे है, देखो -5, सॉरी ये +5, ये -5, ये -4, ये -4, ऐसा है। ठीक है, ये भी 250 आएगा। तो इसीलिए अपन यहाँ पे, क्योंकि नेगेटिव लॉग ऑफ वुड एग्जिस्ट नहीं कर सकते, नेगेटिव लॉग ऑफ वुड कैन नॉट एग्जिस्ट, तो हम इसको n = 20 ही लेंगे। क्लियर है? समझ में आ रहा है? n25 मत लिख देना, n = 20 लेंगे। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? ठीक है, अर्थमेटिकली करोगे तो राइट है, लेकिन लॉग्स ऑफ वुड आपके नेगेटिव कैसे होंगे? नंबर्स का गेम खेलोगे तो होगा, लेकिन लॉग ऑफ वुड नेगेटिव नहीं हो सकता। ठीक है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ठीक है, ओके ओके ओके। क्या है भाई साहब ये? केस स्टडी। अरे यार, केस स्टडी के क्वेश्चन मेरे को बहुत बोरिंग लगते हैं। क्या? While designing the school yearbook, a teacher asked the student that the length and width of a particular photo is increased by x units each. ये x है भाई साहब, x। अच्छा चलो भाई साहब, लेंथ ओके। To double the area of the photo, the original photo is 18 cm, 12 cm long. Based on the above information, answer the following question. Write an algebraic equation depicting the above information. तो आपका भाई साहब एरिया डबल हो गया है ना? 12 प्लस x, ठीक है, 12 प्लस x, ये हो गया नया ब्रेथ, इंटू 18 प्लस x, एक ही साइड का हो रहा है भाई साहब। देखो 18 प्लस x, 12 प्लस x इज इक्वल टू द स्टूडेंट दैट द लेंथ एंड विड्थ ऑफ अ पर्टिकुलर इंक्रीज बाय x यूनिट्स एच टू डबल द एरिया ऑफ द फोटो। तो एरिया कितना होगा भाई साहब? पहला ओरिजिनल एरिया कितना होगा? 12 इंटू 18, डबल द एरिया कितना हो जाएगा? इंटू 2 कर दो भाई साहब, ये हो गया आपका इक्वेशन। ठीक है, क्लियर है? सो राइट एन एल्जेब्रिक इक्वेशन, तो अभी भाई साहब कर लो इसको। ये हो गया क्या? x इंटू एक्स हो गया आपका x का स्क्वायर प्लस 18 प्लस 12 कितना हो गया भाई साहब आपका? 40 है ना? नहीं 30x प्लस 18 इंटू 12 कितना हो जाएगा भाई साहब? 18 इंटू 12 हो गया 8 2 16, 2 1 2 1 3, 18 भाई साहब 6, 8 प्लस 9 10 11, 216 इज इक्वल टू भाई साहब कितना हो गया? 12 2 24 इंटू 18, तो ये हो गया आपका 4 8 32, 8 2 16, 17 18 19, 4 1 4, 2 1 2, 2 9 प्लस 4 13, 2 प्लस 1 3 1 4, तो दैट इज 432। तो एक्स स्क्वायर प्लस 30x, अब कर लो भाई साहब माइनस, तो यहाँ पे 32 से 16 गया 16 और 4 से 2 गया, तो ये माइनस 216 आ जाएगा, है कि नहीं भाई साहब? माइनस 216 इज इक्वल टू 0। क्लियर है? क्लियर क्लियर क्लियर, ये हो गया आपका इक्वेशन। सो दिस विल बी द फर्स्ट आंसर दैट यू हैव। This will be basically the equation. Okay. Now what you have to write is write the corresponding quadratic equation.
मतलब भाई साहब तो कौन सा लिखना है किसमें, ई वाला पहला वाला होगा शायद, ये वाला है ना। ठीक है, ये हो गया आपका पहला आंसर, फर्स्ट आंसर। ये हो गया आपका सेकंड आंसर क्वाड्रेटिक फॉर्म में। ठीक है, राइट द कॉरेस्पॉन्डिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, व्हाट शुड बी द न्यू डायमेंशंस ऑफ द एनलार्ज फोटो। ये और में है ना भाई साहब। ठीक है, चलिए तो इसको सॉल्व करते हैं भाई साहब। कितना हो गया, ये होगा आपका 6 × 6 × 6 है ना, 6 × 6 × 6, तो मतलब भाई साहब क्या हो जाएगा, 2 × 3 × 2 × 3 × 2 × 3 30 चाहिए भाई साहब। 3 2 6 6 2 12 2 2 6 6 2 18 3 2 6 6 2 12। हाँ तो ये हो गया देखो, 3 2 6 6 3 18 3 2 6 6 2 12 18 + 12 को 30 दे देगा। ठीक है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर लेकिन नहीं होगा यार, वो उधर माइनस है ना, माइनस चाहिए भाई साहब, माइनस चाहिए, माइनस माइनस माइनस। सो अपने को कुछ और सोचना पड़ेगा, प्लस नहीं कर सकते इधर। 2 3 3 2 6 12 2 3 6 6 12 हाँ ये हो सकता है देखो, 2 3 6 6 2 12 12 3 36 36 माइनस 6 30 हो जाएगा ये। ठीक है, तो अपन क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 36x माइनस 6x माइनस 216 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे x इंटू एक्स प्लस 36 माइनस 6 इंटू एक्स प्लस 36 इज इक्वल टू 0। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रहा है ये। तो ये हो गया कितना भाई साहब आपका, x माइनस 6 इंटू एक्स प्लस 36 इज इक्वल टू 0। सो इधर x की वैल्यू क्या हो गई 6 और x की वैल्यू क्या हो गई -36। ठीक है, क्लियर है, x की वैल्यू हो गई भाई साहब -36। अभी x की वैल्यू -36 फॉर ऑब्वियस रीजंस नहीं हो सकती। ठीक है, यहाँ पे अपन क्या लिखेंगे, इग्नोरिंग नेगेटिव वैल्यू ऑफ साइड, नेगेटिव वैल्यू ऑफ साइड, देयरफॉर x की वैल्यू क्या हो गई भाई साहब, सॉरी 6। ठीक है, यहाँ पे क्या पूछा है, व्हाट शुड बी द न्यू डायमेंशंस ऑफ द एनलार्ज फोटो। तो देयरफॉर एनलार्ज फोटो का भाई साहब लेंथ कितना हो जाएगा, लेंथ विल बी इक्वल टू 18 + x दैट इज 18 + 6 दैट इज 24 सेंटीमीटर, और ब्रेथ कितना हो जाएगा भाई साहब 12 + 6 दैट इज 18 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आपके नए डायमेंशन हो गए। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल। ओके, ठीक है भाई साहब, पुलिस आ गया। Okay, Indian Meteorological Department observes seasonal and annual rainfall every year in the subdivisions of the country. It helps them to compare and analyze। ठीक है, 200 400 यहाँ क्यों नहीं डिवीजन दिया हुआ है, लाइन खींचना भूल गए क्या भाई साहब, लाइन वाला खींचना भूल गए, कोई दिक्कत नहीं, हम ही खींच देते हैं। चलिए ठीक है, कह रहे ओके, राइट द मॉडल क्लास ऑब्वियसली ये वाला हो जाएगा भाई साहब, है ना। काम करते हैं, इसका अपन निकालते हैं। ठीक है, ओके, तो आप भाई साहब यहाँ पे लिखेंगे, इसको फ्रीक्वेंसी नाम दे देंगे भाई साहब। ठीक है, और ये हो गया भाई साहब आपका XI। ठीक है, और भाई साहब इधर आपको लेना है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ना, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भाई साहब कितनी हो जाएगी,
यहाँ पे तो 2, 2 + 4 6, 6 + 7 13, 13 + 4 17, 17 + 2 19, 20 21 22 23 और फाइनली 24। तो तुम्हारे n की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो गई भाई साहब? n की वैल्यू हो गई 24। ठीक है, मॉडल क्लास लिखना है तुमको। ठीक है, व्हाट विल बी द मॉडल क्लास पीपल? मॉडल क्लास तुम्हारा हो जाएगा ये वाला, है ना, ये वाला मॉडल क्लास हो जाएगा। सो दिस विल बी द मॉडल क्लास, दैट इज 600 to 800, दैट विल बी द मॉडल क्लास। फाइंड द मीडियन। मीडियन के लिए क्या फॉर्मूला है भाई साहब? मीडियन के लिए फॉर्मूला क्या है? अरे बोलो, पहले हम क्या करेंगे, n/2 करेंगे, दैट इज 24/2, दैट इज 12। ठीक है, 12 कहीं पे आ रहा है, ये हो गया आपका मीडियन क्लास, है ना, ये हो गया आपका मीडियन क्लास। सो दिस विल बी वॉटम पीपलम, दिस इज योर मीडियन क्लास। क्लियर क्लियर क्लियर। और मीडियन क्लास में भाई साहब क्या हो जाएगा? मीडियन क्लास में आपका मीडियन विल बी इक्वल टू लोअर लिमिट n प्लस n/2 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इनटू ये हो गया h, है ना, बाई f फ्रीक्वेंसी। करेक्ट, f फ्रीक्वेंसी। ठीक है, l लोअर लिमिट कितना हो गया भाई साहब आपका? 600, n/2 तो आपको मालूम है 12, माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रीसीडिंग क्लास, दैट इज 6, है ना, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी किसका? प्रीसीडिंग क्लास का, तो ये हो गया 6 इनटू भाई साहब करेंगे क्लास विड्थ, ये कितना है? 200, है ना, 200 अपॉन f फ्रीक्वेंसी, दैट इज 7, ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, सो दैट विल बी 600 प्लस 12 माइनस 6 हो गया 6, 6 इंटू 200 हो गया आपका 1200, 1200/7। फटाफट से कर लेते हैं भाई साहब यहाँ पे, 1200/7, 7 1 ज़ा 7, 7 + 5 12, 7 7 ज़ा 49, ये हो गया 7 1 ज़ा 7, हो गया 3, 7 4 ज़ा 28, 7 2 ज़ा 14। ठीक है, ओके, तो ये हो गया आपका 171.42 और ये हो गया 600.00, तो ये हो गया 2417 771.42, ये हो गया भाई साहब आपका मीडियन ऑफ द गिवन डेटा। क्लियर है? आर वी क्लियर? नो डाउट। ठीक है, मीन रेनफॉल, अच्छा और में है ये, अरे यार मीन तो बहुत लंबा चलेगा, है ना, मीन का क्या करेंगे भाई साहब? XI/FI, है ना, समेशन ऑफ XI/FI, एक और कॉलम आपको बनाना पड़ेगा, इधर XI/FI कर लो, तो यहाँ पे कितना, इसको XI लेना पड़ेगा, इसका मतलब तुमको मीन के लिए XI लेना पड़ेगा, तो ये कितना हो जाएगा बोलो? XI यहाँ पे हो गया 300, यहाँ पे हो गया भाई साहब आपका 500, यहाँ पे हो गया 700, ठीक है, यहाँ पे हो गया आपका 900, दिस विल बी 1100, दिस विल बी 1300, 1500 और ये हो गया आपका 1700, ये हो गया मीन का। FI भाई साहब दिया हुआ है यहाँ पे 2 4 7 4 2 3 1 1। XI/FI करेंगे भाई साहब, XI/FI ये कितना हो जाएगा? 600, ये हो गया आपका भाई साहब 2000, 4900, 3600, 2200, 3900, 1500 और ये हो गया आपका 1700। ठीक है, ये हो गया 0 0, 9 + 6 15, 15 + 6 21, 22 23, 23 + 9 32, 32 + 5 37, 37 + 7 44, 44 4 5 6 6 + 4 10, 13 14 15 16 17 18 19 20, 20400। ठीक है, ये हो गया समेशन FI/XI। आपका मीन क्या हो जाएगा? मीन विल बी समेशन FI/XI अपॉन समेशन FI, है कि नहीं? ठीक है, समेशन FI कितना है भाई साहब आपका? 24 ना, ये कैलकुलेट किया था ना, समेशन FI भाई साहब कितना था यहाँ पे? 24, तो देयरफॉर मीन ही पूछा है ना, मीन विल बी इक्वल टू 20400 अपॉन 24, कितना आ जाएगा भाई साहब ये? 12 4 6 ज़ा 24, 4 5 ज़ा 20, 00, 3 2 3 ज़ा 6, ये 3 से जाएगा भाई साहब, ठीक है, 2 3 ज़ा 6, 2 25 ज़ा 50,
2 5 ज़ा 10 और ये 0, 6 7 8 9, 2 3 8 ज़ा 24, 3 5 ज़ा 15 0। ठीक है, तो मीन आपका कितना हो गया यहाँ पे? मीन इज इक्वल टू 850। मेकिंग सेंस पीपल? आर वी, इज इट मेकिंग सेंस? ठीक है, ओके। Subdivision having at least 1000 millimeter rainfall during monsoon season is considered good rainfall subdivision. Then how many subdivisions had good rainfall? ये क्या है भाई साहब? At least 1000, तो कितने सब डिवीजन भाई साहब? एटलीस्ट 1000 मतलब 2 3 5 6 7, 7 सब डिविजन में अच्छा रेनफॉल हुआ, यही ना, है ना? ठीक है, तो देयरफॉर 7 सब डिविजन्स हैड गुड रेनफॉल। ठीक है, क्लियर है? आर वी क्लियर? क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ओहो, ये क्या है? Discus throw is an event in which an athlete attempts to throw a discus. The athlete spins anti-clockwise around 1.5 times through a circle. Okay, 1.5 times. Then releases the throw. When released, the discus travels along a tangent. Okay, in the given figure, AB is one tangent to the circle of radius 75 centimeter. Okay, इसका हाथ का radius 75. Point O is the center of the circle. एंड एंगल ए बी ओ सब तो दिया हुआ है भाई साहब 30 डिग्रीज। पी क्यू आपका क्या है? पैरेलल टू ओ ए है। अच्छा जी, पी क्यू, ओके। बेस्ड ऑन फाइंड द लेंथ ऑफ ए बी। लेंथ ऑफ ए बी क्या हो जाएगा बोलो यहाँ पे? तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं एंगल ओ ए बी, एंगल ओ ए बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। वाई? अगेन रेडियस एंड टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट आर परपेंडिकुलर। ठीक है, तो इन ट्राइंगल ओ ए बी, ठीक है, ओ ए बाई ए बी, ओ ए बाई ए बी इज इक्वल टू tan 30 डिग्री। ओ ए की वैल्यू कितनी हो गई? 75। ए बी इज इक्वल टू tan 30, tan 30 विल बी 1/√3। सो देयरफॉर ए बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई साहब? 75/√3। ठीक है, 75/√3। फाइंड द लेंथ, इसको अपन कर सकते हैं भाई साहब 75 इंटू 1.71। ठीक है, ये हो गया आपका लेंथ ऑफ ए बी। ठीक है, क्लियर है? ओके, ये आ गया लेंथ ऑफ ए बी। फाइंड द लेंथ ऑफ ओ बी। ओ बी कर लो भाई साहब यहाँ पे लेंथ ऑफ ओ बी। क्या करोगे भाई साहब? ओ ए बाई ओ बी इज इक्वल टू साइन 30, है कि नहीं? ओ ए बाई ओ बी इज इक्वल टू साइन 30। तो इसका मतलब कितना हो जाएगा? ओ ए इज इक्वल टू ओ बी और इधर साइन 30, है कि नहीं? तो ओ बी की वैल्यू कितनी हो गई? ओ ए की वैल्यू है 75, साइन 30 की वैल्यू हो गई 1/2, तो ये हो गया आपका 150 सेंटीमीटर। ये हो गया आपका भाई साहब ओ बी का वैल्यू। ठीक है, क्लियर है? ओके, फाइंड द लेंथ ऑफ ए पी। ए पी की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई साहब? लेंथ ऑफ एपी कैसे कैलकुलेट करोगे भाई साहब? हाँ, बीपीडी, बीपीडी के हिसाब से क्या हो जाएगा बोलो? ए पी तो हमने कैलकुलेट किया नहीं है ना, हमने ए बी फाइंड आउट किया है। एपी आ गया है ना? एपी फाइंड आउट किया गया हमने? नहीं ना, एपी को फाइंड आउट करना पड़ेगा भाई साहब। इसीलिए इसका 2 मार्क्स है भाई साहब। टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम तुम्हारा है? नहीं, टेंजेंट सेकंड नहीं है इन लोगों को, है स्टेट बोर्ड वालों को टेंजेंट सेकंड थ्योरम है। एपी को एक्स लिया तो पी बी 75 माइनस एक्स क्यों होगा? फिर
चलो सिमिलर हुआ, फिर कैसे आएगा x का वैल्यू? हाँ ओ बी है ना, लेकिन p कहाँ से आ रहा है? p ए पी या तो ओ क्यू क्यू बी होना चाहिए। हाँ ओ क्यू हो जाएगा। हाँ ऐसे कर सकते हैं ना, देखो यहाँ पे ओ बी है ना, ओ बी तुम्हारा कितना है भाई साहब? ओ बी आया कितना? 150 सेंटीमीटर। और यहाँ पे देखो रेडियस दिया हुआ है ना, हाँ वही ओ क्यू किधर आया? when release to at least spin angular 1.5 times to a circle then release to when release obis। हाँ तो रेडियस देखो आपका 75 है, तो ओ क्यू की वैल्यू कितनी है? ओ क्यू की वैल्यू हो गई आपकी 75, ऐसे निकाल सकते हैं अपन, ठीक है। ओ क्यू की वैल्यू हो गई भाई साहब 75, तो आपका भाई साहब क्यू बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? क्यू बी की वैल्यू हो गई 150 सेंटीमीटर माइनस 75 सेंटीमीटर, दैट इज 75 सेंटीमीटर, ऐसे निकाल सकते हैं, ठीक है। तो नाउ इन ट्राइंगल्स, कौन कौन सा ट्राइंगल्स? ओ क्यू पी एंड, सॉरी क्या लिख दिया मैंने, तो इन ट्राइंगल्स कौन कौन से ट्राइंगल्स भाई साहब? इन ट्राइंगल्स बी पी क्यू, बी पी क्यू, बी पी क्यू एंड बी ए ओ, एंड बी ए ओ, ठीक है। इन ट्राइंगल्स बी पी क्यू एंड बी ए ओ क्या क्या बराबर हो जाएगा बोलो? एंगल बी इज इक्वल टू एंगल बी, ठीक है। और क्या बराबर हो जाएगा बोलो? एंगल बी पी क्यू, एंगल बी पी क्यू इज इक्वल टू एंगल बी ए ओ, एंगल बी ए ओ। अगेन रीजन हो गया आपका कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। क्लियर है? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गया भाई साहब। तो देयरफॉर ट्राइंगल बी पी ओ is similar to triangle BAO by AA test, ठीक है। क्या क्या लिख सकते हैं अभी हम बताइए भाई साहब? BP by BA, BP by BA will be equal to BP by BA will be equal to BQ by BO, ठीक है। और क्या भाई साहब? पी क्यू बाई ए ओ, पी क्यू बाई ए ओ, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। अपने को फाइंड आउट क्या करना है भाई साहब? ए पी ना, ए पी कहाँ गया है यार? ए पी फाइंड करना था, तो इतना लंबा क्यों खींच गया भाई साहब? हाँ ठीक है चलिए, तो आपको यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा? बी क्यू बाई बी ओ, ये तो अपने को मालूम है। और यहाँ पे ये हो गया भाई साहब बी पी बाई बी ए। तो बी पी बाई बी ए, बी पी बाई बी ए आपका है कितना? बी ए हमने कितना निकाला था भाई साहब? ए बी 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 इज हाउ मच? 75 अंडर रूट 3 इज इक्वल टू बी क्यू बाई बी ओ। हाँ नहीं, बीपीटी से, हाँ पी क्यू और ए ओ ना, तो बीपीटी से भाई साहब क्या हो जाएगा? बीपीटी से भाई साहब बीपी बाई ए पी, बीपी बाई ए पी, सॉरी ए बी है ना, बीपी बाई ए बी विल बी इक्वल टू बी क्यू बाई बी ओ, है ना। बीपी की वैल्यू नहीं मालूम है हमको, बीपी बाई ए बी कितना हो गया? हाँ एक मिनट, यहाँ पे बीपीटी लगा देते हैं ना, तो इसे करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर हमने यहाँ पे किया है भाई साहब, क्या क्या निकाला अपन ने? क्यू बी, पहले लिख लेते हैं भाई साहब, मेरा बहुत कंफ्यूजन हो रहा है। क्यू बी क्यू बी क्यू बी क्यू बी
ये हो गया आपका भाई साहब क्यू बी, ठीक है। इसकी वैल्यू आई कितनी 75 सेंटीमीटर, 75 सेंटीमीटर क्यू बी की वैल्यू आ गई, ठीक है। और क्या है भाई साहब, क्यू ओ की वैल्यू भी कितनी है 75 सेंटीमीटर, तो क्यू ओ की वैल्यू, ये वाली वैल्यू भी कितनी हो गई 75 सेंटीमीटर, ठीक है, क्यू ओ की वैल्यू। दिस अपॉन दिस विल बी इक्वल टू ए पी अपॉन बी पी। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, ठीक है, ओ क्यू बाई बी क्यू विल बी इक्वल टू ए पी अपॉन बी पी बाई बी पी टी थ्योरम, ठीक है। बी पी टी अप्लाई कर दिया हमने, ठीक है। ओ क्यू कितना है भाई साहब, 75 बाई 75, 75 बाई 75 विल बी इक्वल टू ए पी अपॉन बी पी। बी पी की वैल्यू अपन ने कितनी निकाली थी भाई साहब, बी पी की वैल्यू निकाली थी क्या, नहीं नहीं निकाली थी ना, तो ए पी बाई बी पी, चलिए भाई साहब, तो 1 इज इक्वल टू ए पी बाई बी पी, सो देयरफॉर ए पी और बी पी आपके हो गए बराबर, ठीक है। ए पी और बी पी बराबर हो गया, मतलब इसको अपन क्या लिख सकते हैं, हाफ ऑफ ए बी लिख सकते हैं इसका मतलब, ठीक है, हाफ ऑफ ए बी, दोनों भी हाफ ऑफ ए बी हो जाएंगे। और ए बी की लेंथ हमने निकाली थी ना, कहाँ, नहीं, हाफ ऑफ ए बी 75 अंडर रूट 3, 75 अंडर रूट 3 बाई 2, ठीक है। तो आपका भाई साहब यहाँ पे ए पी का वैल्यू हो जाएगा 75 अंडर रूट 3 बाई 2, ठीक है, जो भी आपका इसका वैल्यू आएगा, ठीक है। क्लियर है, 37.5 इंटू 1.71, यहाँ पे 75 इंटू 1.71 है, उसका ही आधा कर दोगे यहाँ पे 37.5 इंटू, फिर से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, जो यहाँ पे आएगा प्रोडक्ट उसका ही आधा करना है, ठीक है। सो दिस बेसिकली कंप्लीट्स योर 2023 का पेपर, ठीक है। इसमें मैंने आपके साथ अप्रॉक्सीमेटली कल 1.5 घंटा और आज 1.5 घंटा स्पेंड किया है, जिसमें मेरे और भी बहुत सारे टाइम वेस्ट हुआ है। मैंने आपके साथ पेपर डिस्कस करते हुए किया है, और मैंने आपके साथ और क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट किए हैं, ठीक है। तो अगर आप देखोगे तो मतलब इतना टाइम नहीं लगना चाहिए अगर आप सुनियोजित और सुव्यवस्थित तरीके से कर रहे होगे तो, ठीक है। मतलब मैं बता सकता हूँ आपको कि सिर्फ अगर मैं ही या एक स्टूडेंट अगर सॉल्व कर रहा होगा तो लगभग 2 घंटे में इसको निपटा सकता है। मामला फंसता कब है, इन सब जगहों पे, यहाँ पे थोड़ा सा भी आप पैनिक मोड में जाएंगे तो सवाल बिगड़ जाए, ठीक है। अंडर रूट 3 आ गया, ये आ गया, वो आ गया, थोड़ा सा प्लान करके स्ट्रैटेजी के साथ एकदम काम माइंड में सॉल्व कीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। आप, मैं बता रहा हूँ ना आपको, मैंने 3 घंटे का हिसाब दिया, लेकिन इन 3 घंटों में मैंने और क्वेश्चंस भी किए आपके साथ, और आपके साथ डिस्कस करते हुए कर रहा हूँ, तो ऑब्वियसली मेरा टाइम उसमें जा रहा है, ठीक है। तो अगर मैं आपको टीच करते हुए इस एक पेपर को 3 घंटे में कर सकता हूँ, तो एज अ स्टूडेंट आप इसको 2 घंटे में निपटा सकते हैं, ये मेरा मानना है, ठीक है। हाँ, आपको ज़्यादा से ज़्यादा कम टाइम में इसको निपटाना पड़ेगा, क्योंकि कहीं कहीं पे सवाल फंसते हैं, उन सवालों के लिए आपको टाइम रखना पड़ेगा, ठीक है, वरना 100 आउट ऑफ 100 लाना नामुमकिन नहीं है, ठीक है। आप बहुत प्लान्ड तरीके से चलेंगे, बहुत प्लान तरीके से चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। क्लियर है, विल ट्राई डू एंड डू मोर। आपकी तरफ से कोई क्वेश्चन है, एनी क्वेश्चन, एनी डाउट्स, ठीक है। मैंने आपको ये जो क्वेश्चंस ये हैं पेट सेट्स 2023 के, उनको भेजे हुए हैं, उनके सोल्यूशंस भी हैं, देखिए उनको, नहीं समझ में सोल्यूशन थोड़े संक्षिप्त तरीके से हैं, उतने डिस्क्रिप्टिव नहीं है, उतने तरीके से आप लिखोगे तो मार्क्स नहीं मिलने वाले, वहाँ पे रीज़न कुछ दिया नहीं हुआ है, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको इसको ठीक से करा रहा हूँ, जहाँ पे आपको रीज़न वगैरह देना पड़ेगा। एनी डाउट्स यू हैव, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूबल टाइम।